So coming back to our next lecture on the third chapter, that is particle duality. In the last period, we have seen the de Broglie's hypothesis of the matter wave, which explained that at any matter, it possesses the dual nature. It is present in form of particle as well as in form of the wave. Now, after having seen the de Broglie's hypothesis and expression for the de Broglie's wave, today we are going to see some more articles of this particular chapter, and the content of the today's lecture is phase velocity and group velocity that we will try to see. Then relation between the phase velocity and velocity of particle or particle velocity. And at last, I will conclude the lecture by giving the summaries. Now, phase velocity. If you remember our last period, we have seen that according to the de Broglie's, matter is nothing but it is a particle which is moving in form of wave. Am I correct? Are you agree with this statement? Please tell yes or no. Yes. That means a particle is there and it is moving in form of the wave. Wave, it is nothing but it is consisting of crest and trough, isn't it? Now, when the wave is consist of crest and trough, that means when there are the two waves, isn't it? There is a phase. फेस किसका वेव फेस किसको रहता अपन बोलते ना वेव्स आउट ऑफ फेस इन फेस यानी क्रिस्ट और ट्रफ जो मिला के रहते ना क्रिस्ट क्रिस्ट के जगह पे और ट्रफ ट्रफ के जगह पे आया दो वेव का तो उसको हम क्या बोलते हैं दे आर इन फेस और क्रिस्ट ऑफ वन कोइंसाइड विद द ट्रफ ऑफ अदर एंड इन अल्टरनेट ऑफ दिस वन दैट वी आर कॉल्ड आउट ऑफ फेस एम आई करेक्ट आर यू एग्री विद द फेस समझता आपको वेव फेस किसको रहता वेव को रहता इजंट इट आर यू गेटिंग प्लीज unmute yourself. Yes, sir. Isn't it? And that's why, according to the de Broglie hypothesis, particle nature or particle of a matter, it is moving in form of the wave, and hereafter we are calling this as a wave. And this wave, it is at rest or it is moving. Wave कब रहती जी? Wave एक जगह बैठी हुई रहती क्या? Wave हरकत करती? Wave travel करती क्या नहीं? Wave बोलते जब अपन उसको जो travel करती है क्या नहीं? क्या कुछ रुकी हुई चीज है अपन उसको wave बोलते हैं क्या? Please unmute and tell me. No. That means जो मैटर हरकत में है, चाहे वो अगर हम पानी की बात करें, पानी के अंदर अगर हम एक पत्थर मारे तो सेंटर में ऐसा जाके उसकी तरफ ऐसे 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 वेव तैयार होते हैं क्या नहीं? या जो है तो रस्सी के ऊपर रोप के ऊपर हम अगर ऐसा इस तरह से करें तो उसके ऊपर ऐसे वेव तैयार तो उसको जब हम वेव बोलते हैं ना. Am I correct? That means it is moving. It is moving, and when it is moving, it has some velocity. जो चीज जो शय हरकत में है उसको रफ्तार रहेंगी कि नहीं जी? रहेंगी. Yes, that means when the velocity with which the wave travel, it is called as the wave phase velocity. Phase, what is the definition of phase velocity? According to de Broglie, matter possess wavy nature. पार्टिकल नेचर है ये तो मालूम ही था, लेकिन क्या बोले पार्टिकल नेचर भी है और वेवी नेचर भी है. अकॉर्डिंग टू de Broglie, matter possess wavy nature. That means wave is there and this wave is moving with the velocity, and that velocity with which the wave travels, it is called as the phase velocity. समझ में एक डेफिनेशन आपकी phase velocity की? Please tell me yes or no. Yes, sir. That means the velocity with which the wave travels, it is called as the phase velocity, and this is the velocity at which the phase of any one frequency component of the wave is traveled. कौन सा भी एक component जो रहेगा frequency component उसका with which it is traveling, it is called as the velocity, and it is denoted by Vp. कैसे denote करेंगे? V velocity के वास्ते V इस्तेमाल करते थे. P, what is this? Phase. Vp. Whenever we are using the symbol Vp, P उसके जो है तो नीचे आएगा, prefix में आएगा, that is called as Vp, and that Vp is nothing but it is the phase velocity. Phase velocity means the velocity of the matter wave with which it is traveling, isn't it? And for such component, a given phase of the wave, for example, crest will appear to travel at the phase velocity.
समझे, क्रिस्ट की बात करें हम तो उसका एक फेज यह है क्रिस्ट है ना, क्रिस्ट और ट्रफ रहता है। अगर हम क्रिस्ट की बात करें मिसाल के तौर पर, will appear to travel at the face velocity, isn't it? And therefore the face velocity has the expression in terms of the wavelength lambda and in terms of time, that means the expression velocity क्या है, rate of change of displacement है ना। आम अल्फाज में आम डेफिनेशन क्या है वेलोसिटी की, प्लीज? रेट ऑफ चेंज ऑफ Velocity. वेलोसिटी की डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। Please unmute yourself. Just 2-3 students, please unmute yourself and tell me, because I want the answer from your side. Please unmute yourself, dear students. Please unmute. क्या है वेलोसिटी की डेफिनेशन, क्या है जी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बराबर है क्या? Isn't it? And that's why यहाँ पर हम किसकी वेलोसिटी बोल रहे हैं? किसकी वेलोसिटी है? वेव की वेलोसिटी है। Gravity. And that's why the velocity of the wave, that is the phase velocity, it has the expression in terms of wavelength lambda and time, because rate of change of displacement तो यहाँ क्या होता है, wavelength रहती, यानी कि क्रिस्ट और ट्रफ के दरमियान का फासला जो रहता है ना, वेव कितनी बड़ी है छोटी है, वही उसका डिस्प्लेसमेंट है। Therefore the expression or formula for the phase velocity Vp is equal to lambda upon t। समझ में आया कि आपके फेस वेलोसिटी की डेफिनेशन समझी, उसका फार्मूला समझा? Yes, sir. उसका फार्मूला क्या है, कैसे डिनोट Yes, करते sir. हैं फेस वेलोसिटी? Vp वीपी। इसका फार्मूला क्या है, is equals to लैम्बडा अपॉन lambda upon t. यानी कि वेवलेंथ अपॉन T. टाइम, इट इज कॉल्ड एज द फेस वेलोसिटी। Time. Yes, it is nothing but it is the expression for the phase velocity in terms of wavelength and time। Now वेव के वास्ते एक फार्मूला है, वेव हम बोल देते, लिख देते WAV वेव, उतारते वक्त इस तरह से ऐसा उतार के बताते हम, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था पार्टिकल वेव में। लेकिन मैथमेटिकली द वेव इट इज एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, a cos omega t minus kx, isn't it? This is the Yes, sir. mathematical representation of the wave, or in other words you can write in others in terms of sin 2 pi lambda x minus vt, and the pattern travels with the velocity with the actual speed, that is vp is equal to क्या, lambda upon t, यानी कि it is f lambda, यानी कि frequency into wavelength, that is nothing but the angular frequency upon k, यानी कि it is what is vp का फार्मूला क्या है, omega upon k। omega is K. what is Omega omega? is Angular frequency, किसकी angular frequency? Of the wave। wave And k of is the what? It is propagation constant, or it is the with which it is moving, propagation constant। Therefore the another formula for the phase velocity vp is equals to क्या, omega upon omega upon K. what is omega? Is angular frequency, and k is Angular frequency is proportional propagation constant. constant। Yes, nice। So one more formula for the refractive index is defined, that is c upon v, we are knowing, and therefore this means that c is equals c, that vp is, can also be written that c upon vp in this way, if we can write in this manner, isn't it? So this is the expression for it। Yes. ग्रुप वेलोसिटी, फेस वेलोसिटी मिलेगी आपको, फिर एक बार फेस वेलोसिटी बोलता हूं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, मैटर इज मूविंग इन फॉर्म ऑफ द वेव। आर यू एग्री? This wave has the velocity. Yes. This velocity is denoted by Vp, and this velocity of the wave with which it is traveling, it is called as wave velocity, or that we also called as the phase velocity of the atom। Getting one? Now one more thing I would like to express, another term, group velocity, means what? Generally, even though we are saying a wave, वेव किसकी किसकी बनी हुई रहती थी, एक क्रिस्ट और एक ट्रफ को मिला के हम क्या बोलते, वेव। Wave रहती। नहीं, that is the wavelength, no doubt। Distance between two successive crest and two trough, it is called as the wavelength। सुन लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वेवलेंथ। वेवलेंथ किसको बोलते हैं हम? जब वेव के अंदर एक क्रिस्ट नंबर 1 और क्रिस्ट नंबर 2 के दरमियान का फासला, डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रिस्ट या टू सक्सेसिव ट्रफ, इट इज कॉल्ड एज wavelength। Am I correct?
Yes, sir. आई एम आस्किंग हियर वेव। वेव किसको बोलते हैं? एक क्रिस्ट, यानी कि ऐसा जाके ऐसी जो बनेंगी, ये मजमूई तौर पर क्या कहलाती? एक वेव। वेव कब बनेंगी बोलते हम? एक पार्टिकल रखा हुआ है, इसको वेव बोलते हैं क्या अपन? नहीं बोलते। नहीं। वेव कब बोलते हैं अपन? कोई ऐसा सीधा भाग रहा, मैं यहां से निकला और ऐसा सीधा भागा, तो मैं वेव है क्या? वेव की शक्ल में भागा है क्या मैं? नहीं। नहीं। वेव की शक्ल में कब भागा मैं? क्रॉस जब जाएंगे, यानी जब एक क्रिस्ट और एक कम से ट्रफ कम में एक क्रिस्ट और एक ट्रफ बना, तो इट इज कॉल्ड एज वेव। वेव। लेकिन हमेशा ऐसा रहता क्या जी कभी कि एक ही क्रिस्ट और एक ही ट्रफ बनता? पानी के अंदर, पॉन्ड नहीं। के अंदर हम पत्थर मारे, इफ वी थ्रो ए स्टोन इन द मिडल ऑफ ए वेरी स्टिल पॉन्ड, व्हाट हैपन? ए सर्कुलर पैटर्न ऑफ वेव इज ऑब्टेन लाइक दिस। एम आई करेक्ट? बीच में का एक गोल रहता, Yes. उसके बाजू एक, फिर उसके बाजू एक, उसके बाजू एक, ऐसा नहीं रहता क्या? नहीं। उसको मिला के हम वेव बोलते हैं। कि वहां हम ऐसा बोलते हैं कि कभी देखो देखो देखो, ये वेव नंबर 1, ये वेव नंबर 2, ये वेव नंबर 3, ऐसा बोले कभी अपन ने? नहीं। अपन क्या बोलते हैं सबको मिला के? वेव। क्या वेव। बोलते हैं अपन? क्या तैयार हुई बोलते हैं? वेव। वेव तैयार हुई। वेव। देन ऑन द रोप, रस्सी के ऊपर, वी आर पुलिंग, वी आर टेकिंग द रोप, वन एंड ऑफ द रोप इन आवर हैंड एंड डूइंग लाइक दैट। ऐसा यूं करने के बाद खाली एक ही वेव बनती क्या जी? एक क्रिस्ट और एक ट्रफ इतना बनता क्या? नहीं। ऐसा ऐसा बनता। That means it is consisting of more than 2-3 waves, isn't it? Are you agree? Yes, sir. Yes, sir. And that's why the combination of more than 2 waves or 3 waves, it is called as the group wave. It is called as group wave. Even though we are Group saying wave. wave, but wave is not always single, but it is the envelope. It is the envelope. Envelope समझते ना? जिसके अंदर सब जमा करते। पहले एक इनवलप आता था पोस्ट में, उसके अंदर आपको कागजात डालते थे, चिट्ठी का खत लिखते थे, इनवलप बोलते ना उसको, पाकिट। Yes, sir. क्या करते पाकिट में? क्या करते अपन? पैसे डाल के देते, यानी 2-3 नोट डालते ना, या 2-3 कागज डाल के खत लिखते हैं अपन। एम आई करेक्ट? यानी कि ग्रुप Yes. वेलोसिटी, ग्रुप वेव इज नथिंग बट इट इज द इनवलप ऑफ more than 2 or more than 2 waves. It is called as the group wave. But we are not saying always group wave. हमेशा हम, हालांकि वेव जो है तो सिंगल नहीं रहती, ग्रुप की शक्ल में रहती, लेकिन हम हमेशा ग्रुप वेव ऐसा पुकारते क्या जी? नहीं। क्या बोलते? खाली Wave. वेव। समझ में आ रही की बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अफीफा, who has just joined, are you getting please? Yes. Yes. That means wave, even though it is a single, is not happening in a single, but it is the combination of 2-3 waves, but it is a group wave. It is called as group wave, but we are Group generally wave. calling this as a wave only. एक सिंगल वेव की भी वेलोसिटी रहती है, अभी बोले हमने थोड़ी देर पहले, that velocity is called as the phase velocity. But wave is not single, but it is the combination of 2 or more than 2 waves. Therefore उसकी जो ग्रुप की जो वेलोसिटी रहेंगी, सिंगल की तो वेलोसिटी बताया आपने, वेव वेलोसिटी है कि नहीं? लेकिन वेव सिंगल Yes. रहता है कभी भी नहीं, बल्कि 2-3 का कॉम्बिनेशन रहता। तो ये 2-3 के कॉम्बिनेशन की, यानी ग्रुप वेव की जो वेलोसिटी रहेंगी, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज व्हाट? Group velocity. वेलोसिटी। समझ में आया? क्लियर हो गया कि आपको पॉइंट अब? Yes, sir. सिंगल वेव और कॉम्बिनेशन ऑफ वेव। हालांकि Yes. कॉम्बिनेशन ऑफ वेव रहता है, लेकिन इसके बाद भी बोलते क्या उसको? ग्रुप वेव नहीं बोलते हमेशा, बल्कि वेव्स बोलते हैं हम। पानी के अंदर पत्थर मारते, उसके बाद जो वेव तैयार होती, पहला वेव जो है तो बहुत तेजी से हरकत करता, दूसरा उससे कम, और जैसे जैसे दूर दूर जाएंगे हम पानी का, वो लेयर की स्पीड कैसी होती? कम 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 होती जाती है। हमें करेक्ट? जो सेंटर Yes, में sir. वेव रहती, जहां पे बिल्कुल जाके पत्थर गिरता, उसकी वो वहां का वाला छोटा रहता, रेडियस पे कम रहता, लेकिन घूमता ज्यादा, है कि नहीं? बीच में वाला भौरा तैयार होता, वो देखो भौरा होता ना तैयार, देखेंगे कभी पानी में? Yes, sir. तो वो सेंटर की स्पीड ज्यादा रहती है, और जैसे जैसे सेंटर से दूर दूर जाते हैं, वैसे वैसे वेव की रफ्तार कम कम होती है, और बाद में जाके तो अंत हो जाता हो। क्या एक पत्थर मारे तो पूरे जो है तो तालाब के अंदर राउंड बनता? ऐसा देखेंगे? नहीं। नहीं। छोटे से हिस्से में बनता, उसमें भी सेंटर वाले की स्पीड ज्यादा रहती, उसके बाद वाली की उससे कम, उससे बाद वाली की उससे कम, और 4-5 के बाद तो वो डैमेनिश हो जाता। Isn't it? That means this is called as the wave group,
and the velocity with which this wave group or with which this group of the wave it is moving, it is called as the group velocity. Velocity. ये जो ग्रुप जब बनता तो क्या होता जी? एक्चुअल में ये ग्रुप जब बनता तो एक वेव, दूसरी वेव, तीसरी वेव, पहली वेव कुछ तो भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ जाती है ओमेगा के साथ, दूसरी वेव उससे कुछ ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ जाती, तीसरी उससे जाती। यानी कि यहाँ पर होता क्या, जब दो तीन वेव बनते तो देयर इज ए मॉड्यूलेशन ऑफ वेव, दैट इज ए मॉड्यूलेशन और इन्वॉल्व ऑफ द वेव टेक्स प्लेस। मैं बोला ना इन्वॉल्व करते, मिलाते, उसको इन्वॉल्व, ये तो आम लफ्ज हो गया लिटरेचर का, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या हो गया, देयर इज ए मॉड्यूलेशन। क्या होता वहां पर? Modulation. मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन होता बोले तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूलेशन होता, प्रोपागेशन कांस्टेंट का मॉड्यूलेशन होता। यानी कि एक वेव एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा, व्हेन द अनदर वेव इज हैविंग विद द एंगुलर फ्रीक्वेंसी डेल्टा ओमेगा, एंड देयरफॉर टोटल वेव कितनी होंगी, टोटल एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होंगी, ओमेगा प्लस डी ओमेगा। पहले की फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी थी, ओमेगा, दूसरी की कितनी थी समझो, डेल्टा ओमेगा। जब दोनों मिले तो मॉड्यूलेशन हुआ ना भाई, दोनों मिलके बना ना एक वेव, पहली ऐसी फिर उसके अंदर दूसरी मिली और रिजल्टेंट फिर ऐसी। समझ में आया क्या? मैं भी बताऊंगा आपको। तो इट इज कॉल्ड एज द मॉड्यूलेशन ऑफ द वेव इज टेट्राप्लेट्स एंड विथ व्हिच इट इज प्रोपागेट थ्रू द स्पेस। Example is same. If we throw a stone into the middle of very pond, then circular pattern of the wave is quiescent center appears in the water, and it is known as the capillary wave also. The expanding ring of the waves is also grouped, यानी कि जो उसके ऊपर तैयार होते, within which one can discern the individual wavelets of the different wavelength traveling at the different speed. Shorter waves travel faster, यानी जो सेंटर के पास रहते, छोटे वेव रहते, सेंटर में पानी में पत्थर डालते बराबर, तो करीब में जो वेव आता उस छोटा रहता है बड़ा रहता है, जो रेडियस में वो छोटा रहता, लेकिन स्पीड उसकी घूमने की ज्यादा रहती थी। ये बता रहे थे, शॉर्टर वेव ट्रैवल्स फास्टर द ग्रुप एज होल, बट देयर एम्पलीट्यूड डिमिनिशेस एज दे अप्रोच द लीडिंग एज ऑफ द ग्रुप। द लॉन्गर वेव ट्रैवल मोर स्लोली एंड देयर एम्पलीट्यूड डिमिनिशेस एज दे इमर्ज फ्रॉम द ट्रेलिंग बाउंड्री ऑफ द ग्रुप। गेटिंग प्लीज? समझ में आ रही बात आपके? Yes, sir. Now phase and group velocity. Now compare two waves formula. अभी अपन बताए phase velocity का क्या है, Vp is equal to omega upon K. K. Omega is angular frequency, K is the propagation constant. Now this can also be written in this way. क्या फर्क है ये दोनों इक्वेशन में? यहाँ मैंने ऊपर जो है तो तीर ये दिया, इसको एरो बताया, यानी कि ये दोनों भी जो है तो वेक्टर क्वांटिटी है। We can also write like this also. Yes. Getting? एक वेव है। What is group wave? ग्रुप में क्या होता? इन ज्यादा वेव है, 2 से 3 वेव है। 2 से 3 वेव रहते। ठीक है, अब हम 2 से 3 वेव बोलने के बजाय इसके सेंस में अगर बोले कि ओमेगा का क्या हो जाएगा, मॉड्यूलेशन होता बोले ना, when the wave combines together and form a wave group, then modulation of the angular frequency and modulation of the angular propagation constant takes place. That means if we want to obtain the velocity of the group wave, it should be equal to delta omega plus delta omega divided by डेल्टा के। क्योंकि अपन ने बोले कि मॉड्यूलेशन होके वेव ग्रुप बनता, so that's why group velocity now involves very closely spaced values of k and omega. हालांकि ओमेगा और डेल्टा ओमेगा में ज्यादा फर्क नहीं रहता, के और डेल्टा के में ज्यादा फर्क नहीं रहता, लेकिन इसके बाद में दोनों क्या होते हैं, मॉड्यूलेटेड हो जाते हैं। साथ ही ग्रुप वेलोसिटी का फार्मूला क्या बनेगा, फेस वेलोसिटी का फार्मूला क्या था, ओमेगा अपॉन के। का क्या बनेगा, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा के। क्या है ये डेल्टा ओमेगा? ग्रुप है, यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा थी, डेल्टा ओमेगा क्या है, मॉड्यूल या चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इट इज चेंज इन प्रोपागेशन कांस्टेंट, एंड दोनों का चेंज in angular frequency divided by change in propagation constant, it is nothing but it is the velocity of the wave group. It is the velocity of wave group. डेल्टा को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डी ओमेगा बाय डी के।
देखिए, if I want to show you in this way, it is of this type. What is the phase and group velocity for this? We see here. It is like this. Can you observe my screen? Yes, sir. It is of this type. देखिए बना बना इस तरह से जाके उसका फेस बदल गया, दिख रहा है ना आपको? It is nothing but it is the wave motion of the group of the wave. Now wave packets भी बोलते हैं उसको. We can combine many waves to separate the lump from its neighbor. Within finite number of waves we can view the wave packet. दो और तीन वेव का जो कॉम्बिनेशन बना उसको दूसरा और क्या नाम है? Wave packet. And it contain the continuum of the wave numbers k. Propagation constant को wave number भी बोलते हैं, isn't it? It is of this type. Resulting wave travels most stress together in this way. पहली वेव दूसरी वेव और बाद में इस तरह. और भी मैं क्लियर करके समझ में आया कि आपको पहली वेव फिर दूसरी वेव और दोनों मिलकर रिजल्टेंट वेव ऐसी. पहली वेव एक, दूसरी वेव पहले एक ऐसी जारी. देख लीजिए मेरे हाथ की तरफ दिख रहा है कि मेरा हाथ दिख रहा है? Yes, sir. पहली वेव ऐसी जारी, उसमें आके दूसरी वेव मिली, वो ऐसी जारी, और दोनों मिल गए. जब दोनों का जब मेल हो गया तो फिर बाद में रिजल्टेंट वेव कैसी गई, दिख रहा? See here. Have you got up to this one? ग्रुप समझा आपको? ग्रुप वेलोसिटी, ग्रुप वेव समझा? Yes, sir. फेस समझा? फेस वेलोसिटी समझी? जी. ग्रुप वेलोसिटी समझी? Yes. Now, or one more thing now we will see, wave and group velocity. It is not difficult to compute the speed u with which a wave group travels. Now let us suppose that a wave group is formed by the combination of two waves. अभी जब आपने बोले कि wave group में क्या रहते, कम से कम क्या रहेगा wave group में? दो wave रहेंगे, है क्या नहीं? सुन रहे हैं आप मुझे? Yes, sir. So see here, let us suppose that a group is formed by the combination of two waves. One wave, दोनों भी वेव का एम्पलीट्यूड सेम है, ए उनका एम्पलीट्यूड, क्योंकि वेव को क्या क्या रहता है? एम्पलीट्यूड रहता, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रहती, प्रोपागेशन कांस्टेंट या वेव नंबर के रहता है कि नहीं? अभी बताया ना मैथमेटिकल फार्मूला मैंने. So let us consider that a wave group is formed by the combination of the two waves having the same amplitude A but slightly different in the angular frequency omega. That is, omega is changed from omega to d omega, and propagation constant k changes from k to delta k. Now first way, w y1 is equals to a cos omega t minus k. बराबर है क्या? ये काय की एक्सप्रेशन है जी? ये y1 बोलिए मुझे प्लीज. y1 काय की एक्सप्रेशन है? Wave की. वेव की. ये पहली वेव है. y2 ये दूसरी Second वेव wave. है. क्या फर्क है पहली वेव और दूसरी वेव में? खाली पहली वेव का एंगुलर एम्पलीट्यूड सेम है, खाली ओमेगा बदल के कितना हुआ? ओमेगा प्लस डी D ओमेगा. omega. प्रोपागेशन कांस्टेंट के का दूसरी वेव में कितना है? D K. ठीक है. अब ये दो वे, पहली वेव है दूसरी वेव है, दोनों पहले ऐसा ऐसा जा रहे, बाद में क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन ऑफ द वेव, पढ़ के आया ना आपने हाइजिन्स, कि ये पहली वेव है दूसरी वेव है, जब दोनों वेव के दरमियान थोड़ा सा पार्ट डिफरेंस है तो पहले दोनों तो सीधा जाते हैं और बाद में जाके एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं? Overlap. ओवरलैप होते हैं. यानी कि दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन ऑफ लाइट दैट वी हैव सीन. दैट मीन और फिर दोनों का क्या तैयार होता है? रिजल्टेंट तैयार होता है. नाउ रिजल्टेंट y एट एनी टाइम t एंड पोजीशन x इज द सम ऑफ y1, यानी दोनों ओवरलैप होते. बोले तो मैथमेटिक्स में क्या होते? दोनों ये y1 प्लस Y2. y2 होते हैं, isn't it? And that's why I will add this one, y1, y is equals to y1 plus y2. तो क्या हो जाएगा? cos अल्फा प्लस, यानी कि y is equal to y1 plus y2 is equal to a cos omega t minus kx plus a cos omega plus d omega t minus kx. अगर हम इसको निकालें तो वो a जो है तो मुश्तरिक बाहर आ जाएगा. cos omega t कंबाइन का कौन सा ट्रिग्नोमेट्री लागू करेंगे हम? cos अल्फा प्लस cos बीटा. cos अल्फा और इतना पूरा cos Beta. बीटा. इसके वास्ते एक ट्रिग्नोमेट्री है कि cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू 2 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा रेस टू हाफ और cos अल्फा माइनस बीटा रेस टू हाफ. isn't it? see here, देखिए पहली वेव, ये पहली की जैसी दिख रही, क्या ये फर्क दिख रहा है क्या जी कुछ इसको?
This is the first wave. Can you see? Crest 1, crest 2. Isn't it? है क्या? Please tell me. Yes. ये दूसरी wave. क्या फर्क है जी इसमें और इसमें? थोड़ा सा इसमें देखो, पहला क्रिस्ट है, दूसरा क्रिस्ट है, तीसरा क्रिस्ट का थोड़ा सा हिस्सा आ गया यहाँ पे। अपन बोले थे ना अभी थोड़ा सा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फर्क रहता बोल के, बोले कि नहीं? प्लीज टेल मी डियर स्टूडेंट। यस सर। ये दोनों मिले तो रिजल्टेंट ऐसा बन गया। ये दोनों मिले a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये दिस वन, दिस इज कॉल्ड एज द प्रोडक्शन ऑफ बिट्स। ये दोनों मिल गए तो बात पहली ऐसी चली, दूसरी ऐसी चली, जब दोनों मिल गए तो फिर ऐसी चली। एम आई करेक्ट? दैट इज कॉल्ड एज द बिट, दैट इज द मॉड्यूलेशन। सी हियर, पहली वेव, दूसरी वेव और बाद में ये देखो दिख रहा, दैट इज द ग्रुप वेव। नाउ अगर रिलेशन के उसमें निकालने का है तो वी कैन ऑब्टेन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 a cos दिस, कंबाइन करें। कंबाइन करने के बाद ये अंदर आ गया 2 ओमेगा प्लस डी ओमेगा 2k प्लस टेके, बट 2 ओमेगा प्लस डी ओमेगा इट इज अब, क्योंकि हमने पहले बोले कि डी ओमेगा ओमेगा के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, 2 ओमेगा तो बहुत बड़ा रहेगा, उसमें डी ओमेगा मिलाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 ओमेगा, 2k प्लस डी के अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2k, and therefore this equation, that is the group velocity or resultant, is equal to y is equal to 2a cos omega t minus kx as it is, और ये क्वांटिटी बनी cos of d omega by 2 plus dk और माइनस के साथ by 2 into x, and therefore equation 1 represent the wave of angular frequency omega, propagation constant k, that has been superimposed in a modulation of the angular frequency। modulation हो गया किसका? angular frequency ओमेगा से कितनी चली गई? 1/2 डी ओमेगा, और प्रोपगेशन कांस्टेंट कितने से मॉड्यूलेटेड हुआ? के से, के से कितना हुआ? माइनस डी, या डी के बाय, माइनस डी। एंड द इफेक्ट ऑफ मॉड्यूलेशन इज टू, मॉड्यूलेशन का इफेक्ट क्या हुआ? मॉड्यूलेशन होने की वजह से एंगुलर फ्रीक्वेंसी और प्रोपगेशन कांस्टेंट मॉड्यूलेट होने की वजह से द फ्रीक्वेंसी इज of the modulation is two successive wave groups are formed, and as a result omega is equal to w is equal to omega upon k, यानी कि it is wave velocity or phase velocity, velocity of u of the group is equal to denoted, ये काय की velocity है? सिंगल वेव की velocity है, w is equal to omega upon k। अभी बोले ना अपन ने, बताया ना ऊपर, समझ में आ रहा? प्लीज टेल मी yes or no, only 10 minutes are there। यस सर। ग्रुप की वेलोसिटी क्या रहेंगी? क्या होगा बोला मैंने? u ग्रुप वेलोसिटी है, तो डी ओमेगा बाय, ये सिंगल वेव की वेलोसिटी, ये ग्रुप की वेलोसिटी, बराबर है क्या जी? यस सर। सिंगल वेव की वेलोसिटी w इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के, ग्रुप की वेलोसिटी डी ओमेगा बाय डी के। क्यों डी के, so these two will combine together and they will form the combination। अब अपन बताएंगे show that group velocity is equal to velocity of moving particle, u is equals to v। u काय की वेलोसिटी है? ग्रुप की। v काय की वेलोसिटी है? सिंगल पार्टिकल। समझ में आई के बात? नाउ वन अगेन अपन क्या बोले कि ग्रुप जब फॉर्म होता तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा का क्या बनता? डेल्टा ओमेगा, एंगुलर प्रोपगेशन कांस्टेंट क्या बनता? k2 डेल्टा k। नाउ फर्स्ट वेव इज दिस वन, एम आई करेक्ट? सेकंड वेव इज दिस वन, अभी के जैसा, बराबर है क्या? चलो आगे। यस सर। हाँ, दोनों को कंबाइन करे होगा कैसा? कंबाइन बनेगा y काय के वास्ते? ग्रुप बनाने के वास्ते, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, दोनों को कंबाइन किए। अभी बोले कि ओ डेल्टा ओमेगा इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा, डेल्टा के इज वेरी वेरी लेस देन के, वी विल सॉल्व, वी गॉट दिस वन। am I correct? Above equation represent the wave of angular frequency omega and angular wave number or propagation constant k, whose amplitude is modulated by an angular frequency delta omega by 2 and wave number delta k by 2। Now effect of the modulation, just I have told you, it to produce the successive wave group, therefore the phase velocity vp or velocity of the wave, it is given by vp is equal to omega upon k, बराबर है क्या? और ग्रुप का डेल्टा ओमेगा बाय, बराबर है क्या? बराबर है? यस सर। Therefore angular frequency of the de Broglie's wave associated with a body of rest mass, ये इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा का क्या फार्मूला है? 2 पाई न्यू, मालूम है कि नहीं? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, where 2 is constant, pi is constant, nu is the frequency, and therefore it is can be written as 2 pi m, क्योंकि nu is equal to c square upon m in this way। और रिलेटिविटी के इसमें लिखने का तो 2 pi m 0 square upon under root h v minus
सी स्क्वायर। समझ में आया क्या ओमेगा का फार्मूला ये रहता बोल के, isn't it? And therefore वेव नंबर का फार्मूला k is equals to क्या 2 पाई अपॉन लैम्बडा। लेकिन लैम्बडा क्या है mv अपॉन h है क्या, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv बोले थे ना अपन ने। समझ में आ रहा है कि कैसा आया तो Yes, sir. 2 पाई अपॉन mv अपॉन h एंड देयरफॉर v की जगह पे अपन ये भी लिख सकते हैं m0 अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी। देयरफॉर ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द डी ब्रॉगलीज वेव v इज इक्वल टू क्या डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा के। लेकिन डेल्टा ओमेगा बोले तो चेंज इन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, किसके साथ चेंज हो रही है विद द वेलोसिटी डी ओमेगा। इसको ऐसा लिख सकता है कि मैं vg is equals to d omega by dk can also be written as d omega by dv divided by dk by dv। लिख सकता है क्या ऐसा मैं इसको ऐसा, यानी कि Yes, rate sir. of change of angular frequency with velocity, rate of change of wave number with velocity। therefore d omega by dk कितना आया था अभी अपना, यानी कि अपने पास ओमेगा है क्या नहीं है क्या ओमेगा, ये इसका डेरिवेटिव लेने का किसके साथ, Velocity. Time के साथ. तो इसका डी ओमेगा के डेरिवेटिव लिए तो 2 पाई m0 जैसा कैसा v जैसा के वैसा h एज इट इज। लेकिन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का फिर डेरिवेटिव निकलेगा 3/2 बराबर है इसका डेरिवेटिव ये इसका डी ओमेगा बाय डीवी 2 पाई m0 एज इट इज h जैसा का वैसा। पहली टर्म में 1 माइनस वी स्क्वायर ये बटे है ना, जजर बोले तो क्या स्क्वायर रूट बोले तो रेज टू 1/2, उसका और एक बार डेरिवेटिव निकला तो ऐड हो जाएगा उसके अंदर 1/2 कितना हो गया 3/2। वैसे जैसा डी ओमेगा बाय डीवी लिए वैसे डी के बाय डीवी कितना आएगा 2 पाई m0 एज इट इज h एज इट इज 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन स्क्वायर इज 2/2 और v का डेरिवेटिव v के साथ, v का डेरिवेटिव क्या होगा dv बाय dv क्या होता 1, isn't it? अब तो फिर आप बाय vg के जगह vg की जगह पे ये लिखोगे जी डी ओमेगा बाय डीवी डिवाइडेड बाय डी के बाय डीवी। करूंगे इसको मल्टीप्लाई करूं ये दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड करूं क्या निकलेगा vg इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी के बाय डी, क्या बनेगा ये सब कट जाएगा बचेगा क्या, ये पूरा सेम है कि नहीं है 2 पाई m0 h v 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर 3/2 कट गया पूरा कटा बचा क्या यहाँ से V. और व्हाट इज vg ग्रुप वेलोसिटी एंड v इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। तो इसका क्या मतलब हो गया vg इज इक्वल टू v मतलब वेलोसिटी ऑफ द वेव ग्रुप इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सिंगल पार्टिकल। Phase group. यस यानी कि पूरा ग्रुप भी वो वेलोसिटी के साथ हरकत करता है जिसके साथ एक सिंगल पार्टिकल हरकत करता है, यानी कि thus the group velocity of the de Broglie wave is equal to the velocity of moving particle। This article is most important from the examination point of view. Many times this was asked, show that group velocity is equal to velocity of moving particle, यानी कि u is equals to v, यानी कि u बोले तो velocity of a group या group velocity and v बोले तो velocity of a particle। यानी कि in case of de Broglie's hypothesis the single particle velocity u is exactly equal to the group velocity और group wave it is moving with the same velocity of particle। कैसे बताएंगे this one, have you got or may I repeat, have you got? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So with this one we shall stop here today. Thank you for joining me. If you have any difficulty you may please call me also, so I will repeat the lecture if you are not getting. All of you have got Afifa? Yes, sir. Arbaz, have you got? So we shall stop here today. Remaining thing we shall see inshallah in the next period, that is Monday or Tuesday. Just 2 article or 2 lecture, 2 video lectures are still there, so that this third chapter will be completed. Thank you for joining me. Have a nice time ahead. We will Thank you, meet sir. inshallah in the next video. Thank you.